شہر اور خبر کے ساتھ میں ہوں عینی خان، رخ کریں گے پنجاب کا۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں عوام مہنگائی میں اضافے پر پریشان۔ تفصیلات جانتے ہیں ظفر وسیم کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ بالکل ہی حکومت کے تمام تر دعووں اور اقدامات کے باوجود مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ سرکاری نظرنامے کا غیر حقیقی اور اس پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ ہم مہنگائی کرتے ہیں، لیکن دکاندار کو کسی کو مہنگائی کا فرق نہیں ہے، بزنس مین کو کوئی فرق نہیں ہے، سیلری والے کو فرق ہے، ہاتھ کا کام کرنے والے کو فرق ہے۔ آپ 100 کی چیزیں لیتے تھے، پہلے 120 کی بیچ دیتے تھے، اب جب 120 کی لیں گے وہ چیز آپ 140 کی بیچ دیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہ جب بھی پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ متعلقہ ضلع کے ضلعی حکام، انجمن تاجرہ و دیگر تاجر عہدیداروں کی باہمی مشاورت سے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، اضلاع ہیں، ان کے متقابل میں جو ہے وہ نظرنامات جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں اور اپنی کارکردگی جو ہے وہ کم سے کم رکھنے پر جو ہے وہ منحصر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر حقیقی نظرنامہ تعین کیا جاتا ہے اور تاجروں کو یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں کہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، آپ بس ایک ڈی سی کاؤنٹر بنا دیں، وہاں پر سی گریڈ جو ہے وہ سامان رکھ دیں۔ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। تمام کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، نیشنل کمپنیز، ان کی طرف جو ہے کبھی توجہ نہیں دی گئی، کبھی ان کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا گیا، اور جب بھی جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے تو تاجر کے خلاف کی گئی ہے، جو کہ مڈل مین ہے، جو جسے فیکٹری سے مال آتا ہے وہ اپنے 5-10 روپے رکھ کر آگے جو ہے وہ سیل کرتا ہے۔ لہذا مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ جی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح خوشاب میں بھی اشیاء خوردنوش خریب عوام کی قوت خرید سے باہر۔ اس وقت گوشت تو دور کی بات، سبزی کی بھی ریٹ آسمان کو چھونے لگے۔ عوام نے مہنگائی کے خلاف پھوٹ پڑے۔ وقت ملک میں سبزی وغیرہ کے ریٹ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، گوشت کا ریٹ زیادہ ہے اور چکن کا بھی ریٹ زیادہ ہے۔ جس ریٹ پرائس کنٹرول والے آتے ہیں، چلان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ چلان کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ریٹ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حکومت پنجاب، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے اور عوام کو ریلیف دے۔ بھاول نگر میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ شہری کہتے ہیں اس وقت مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، غریب آدمی سبزی فروٹ بھی نہیں خرید سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی کھانے پینے کی چیزیں خرید سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے، غریب بندہ تو خرید ہی نہیں سکتا، غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ غریب بندہ سبزی کھائے یا دوائیوں پہ پیسے لگائے، کس چیز پہ کہاں جائے؟ غریب بندے بہت پریشان ہیں۔ یہ حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی کو کم کرنا چاہیے۔ غریب عوام ہے جو چکی میں پس رہی ہے، یہ غریب عوام کے ساتھ بالکل زیادتی ہو رہی ہے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے اور چکن کی قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے۔ بہت مہنگائی ہے، خریدنے والا بھی پریشان ہے اور بیچنے والا اس سے زیادہ پریشان ہے، تو گورنمنٹ سے گزارش ہے اس پہ غور کیا جائے۔ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ آڑھتی جو ہیں وہ مہنگی دیتے ہیں، آگے مارکیٹ میں ہمیں بھی مہنگی بیچنی پڑتی ہے، گاہک بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ کہ ریٹ مناسب ہو تو گاہک بھی خوش ہو کر چیزیں لے کے جاتا ہے، ہمیں بھی روزی رزق صحیح بنتا ہے۔ ہم پیچھے مال تیز ہوگا تو آگے ہماری بھی مجبوری ہے نا، مہنگے دینا پڑتا ہے سامان۔ میں گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غریب بھائیوں کے لیے اچھا ریلیف دے۔ سبزی بہت مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، سبزی نہیں ہر چیز مہنگی ہے، جو بھی چیزیں لے کے جاؤ تو ٹماٹر ہو گئے، جیسے آلو ہو گئے، بہت مہنگے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ میں بھی ابھی سبزی لینے کے لیے آیا ہوں، تو گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ ہم غریبوں کے لیے کوئی ریلیف دے، بہت مہنگائی ہے۔ چناب نگر اور گردنوار میں مہنگائی کا راج برقرار۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سبزیاں، فروٹ، چکن، مٹن، بیف سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ چناب نگر میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ گرا فروشوں نے مصنوعی طوفان مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ شہری کہتے ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں صرف اپنے دفاتر تک محدود۔ سبزیوں میں ادرک 1000 روپے کلو، لہسن 600 روپے کلو، سبز مرچ 300 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ مہنگائی اتنی کہ عام عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی۔ مٹی سے بنائے جانے والے برتنوں کی انڈسٹری گجرات کی پہچان۔ اس قدیم صنعت کو ہر دور حکومت میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ گجرات میں صنعت سے وابستہ شخصیات نے ہمیشہ اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے، جس کی وجہ سے یہ صنعت آج بھی قائم اور دائم ہے۔ پاکستان پوٹری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے صدر
अदनान इकबाल मक्की ने ABN न्यूज़ से इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि लम्हा फिक्रिया है कि आज ये फ़न ख़त्म होता जा रहा है। हबीबाबाद में मसनूई तूफान है महंगाई का, तो तहसील इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने पर बुरी तरह नाकाम। हबीबाबाद में मसनूई महंगाई का तूफान, दालें, चावल, चीनी, गोश्त, फल, सब्जियां खरीदना मुश्किल। शहरियों के लिए अब ये सब कुछ ख्वाब बनकर रह गया। कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब से सरकारी लिस्ट पर अमल दरामद कराने का मुतालबा सामने आया। टोबा टेक्सिम में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बेजा तंग करते हैं। आसिफ नदीम ने रिपोर्ट तैयार की है। एक तरफ टोबा टेक्सिंग ट्रैफिक पुलिस पिछले माह जुर्मानों की मद में रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा होने पर फूली नहीं समा रही, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स ट्रैफिक पुलिस की जानब से आए रोज बेजा जुर्माना पे जुर्माना करने और सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नारवा सलूक पर सरापा एहतजाज है। दर्जनों मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स ने सदर इंसाफ रिक्शा यूनियन मलिक आसिफ की क़ियादत में लारी अड्डा से डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स तक इनके साथ होने वाले मुआशी जुल्म के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाजी मार्च किया और डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के बाहर एहतजाजी धरना दिया। इस मौका पर सदर इंसाफ रक्षा यूनियन मलिक आसिफ ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो पार्किंग की आड़ में रिक्शा ड्राइवर का पिछले 2 माह से 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है, जो रिक्शा ड्राइवर के मुआशी कत्ल के बराबर है। सबसे पहले जो इनका कभी किसी तरफ जोर नहीं चलता तो या आ जाके रिक्शा ड्राइवरों की तरफ आ जाते हैं। हम जिस दिन हमारा ये 2000 रुपए का चालान करते हैं, यकीन करो खुदा की कसम हमारे बच्चे उस दिन भूखे सोते हैं। हम रोटी हम जो कमा के लेके जाना है उससे वो हमारी दाल दलिए चलता है। और दूसरा ये जुल्म हो रहा है कि सेक्रेटरी RTA की तरफ से जो हमारी इजाफी सीट लगी हुई है इसको जबरन उतारा जा रहा है। माड़ा बंदा 700-800 रुपया दिहाड़ी कमाता है, 2000 रुपया चलान कर देंगे, ऐसी पूरा 1 महीना नहीं अफोर्ड कर सकते खर्चा। जबकि सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना था, हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनकी तरफ से भी स्कूल के बच्चों की बड़ी एक हिफाजत के हवाले से कैंपेन स्टार्ट की गई है और उसमें रिक्शे पे आने जाने वाले जितने भी स्टूडेंट हजरात हैं उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए इन पे जो एक्स्ट्रा सीटें लगी हुई हैं उनको उतारा जा रहा है। मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था आए रोज के बेजा जुर्मानों से इनके घरों में चूल्हे ठंडे और नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिद्धू मामले का फौरी नोटिस लेकर इनके हाल पर रहम फरमाए, बसूरत दीगर वो अपने साथ होने वाले मुआशी जुल्म पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज, टोबा टेक्सिंग। सैलाब को गुजरे हुए 2 साल का अरसा गुजर गया मगर अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। मोहम्मदपुर गुमवाला मुतासरा रोड ताहाल न बन सका। सीम नाले के पुल की हालत भी इंतहाई खस्ता और खतरनाक। रोड की खस्ताहाली के बाद अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। मरीज, औरतों और बच्चों को शहर तक लाने में सख्त दुश्वारी का सामना है। आपको बताएं, रोदकोही के सैलाब से मुतासर होने वाला मोहम्मदपुर गुमवाला रोड ताहाल न बन सका। चक धंधी, चक शिकारी, चक सियाल इलाका पचात की अवाम रोड न बनने की वजह से सख्त परेशान है। रोड पर चलने वाली ट्रैफिक खटारा होने लगी, धुंधली, और इसकी वजह से रात के वक्त सख्त दुश्वारी का सामना है। साहिवाल में जिला कौंसिल के अफसरान और अमले की नाहली सरकारी स्कूल का ग्राउंड गंदे पानी के जौहड़ में तब्दील हो गया। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन पर चलते हुए पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में खेलता पंजाब के नाम से खेलों की सरगर्मियां शुरू की। साहिवाल में जिला कौंसिल अफसरान और अमले की नाहली ने सरगर्मी को गंदे पानी के जौहड़ में मिलाकर रख दिया। बच्चों का सरकारी प्राइमरी स्कूल खेल के मैदान से महरूम हो गया है। साफ सुथरा पंजाब कैंपेन चल रही है। मैं पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पानी के ढेर हैं और साथ में ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे बुजुर्गों बड़ों का आना जाना बहुत मुश्किल से होता है और बाज़ का घर करीब है जिसके साथ खाने में वो तंगी है, डेंगू मच्छर का वगैरह जरासीम बहुत ज्यादा फैले हुए हैं और दिल्ली इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेरी खादमे आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की जाती है कि हम बाज़ बल्दिया के दफ्तर में जा चुके हैं, एप्लीकेशन जमा करवा चुके हैं, इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा सकता। मेहरबानी करके हमारे से इलाके की सासी नोयल की हल्का की जो अमन हमारी सफाई चल रही है, कैंपेन चल रही है, उनको पुरतरी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरी खादमे आला से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि इस तरह एक नजर दराई जाए ताकि ये इलाका साफ सुथरा किया जाए। लावा में 11 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की सीट खाली। लावा को 2013 में तहसील का दर्जा दिया गया, ताहम 11 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर लावा और नायब तहसीलदार लावा मौजूद हैं। अरबाब इख्तियार से कि जितनी भी रुकावटें हैं THQ अस्पताल के हवाले से उन्हें दूर कर फौरी तौर पर काम शुरू कराया जाए, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है। पंजाब नाल गुजारिश है कि जल्द अज जल्द काम दोबारा शुरू किया वजे, क्योंकि इत्थों असां या तो तलगंग वहना पौना तो या बात असां चकवाल वहना पौना, जमी वाली वहना पौना।
असली नहायत इन्ना गुजारिश है कि ये कम रुका पा इस हस्पताल ना दोबारा शुरू किया वजे ताकि आवाम इसमें खिदमत हो सके आवाम नहीं कि आवाम आज तो मुस्तफीद हो सके। खबर दें फिरोजवाला से, जहां पे इस वक्त स्मॉग का समा है। मलिक समान शाहीन मजीद बताएंगे। बिल्कुल मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी स्मोक का राज शुरू हो गया है। इस वक्त मैं TH हॉस्पिटल फिरोजवाला में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त MS डॉक्टर जुबैर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इसमें बीमारियों का सबसे पहला है, सांस की बीमारियां होती हैं, गले की होती हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें उसकी बीमारियां हो सकती हैं, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, उसके अलावा इसके जो स्किन की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। रही बात बचाव की, तो बचाव के हिफाजती इकदाम जो वो कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि आप गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, और अगर बहुत ज़रूरी आपको निकलना भी पड़ता है तो अपना मुंह लपेट के एक मास्क इस्तेमाल करके अच्छे सा उसके साथ जाएं, और वापस आते ही उसको अपने मुंह को, गले को, नाक को, आंखों को पानी से धोएं, ताज़े पानी से, ताकि अगर कुछ वो आ जाए तो वो साफ हो जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर TH हॉस्पिटल के MS डॉक्टर जुबैर साहब की बात सुनी। इनका कहना है कि शहरी पहले तो गैर जरूरी घर से निकलना बंद करें, और अगर निकलते भी हैं किसी मजबूरी के तहत तो अपने आप को अपना मुंह ढांप कर रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और जो हिफाजती तदाबीर है इनका इस्तेमाल लाजमी करें। चकवाल से खबर दें, सर्दियों की आमद के साथ साथ लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गई। साजिद बलोच मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, सर्दियों के आगाज के साथ ही चकवाल में जो लंडा बाजार है उनकी रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। चकवाल में जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे ये लंडा बाजार का एक ऐसा एरिया है जिसमें मुख्तलिफ जो सस्ती चीज़ें वो लंडा बाजार के हवाले से रखी जाती थी, लेकिन जो अब ये लंडा बाजार हैं वो भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर होते जाते हैं। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं। लंडा बाजार तो अब मेरा ख्याल है हर पाकिस्तान का शहरी जो है उसका रुख करता है, और इसमें एलिट क्लास भी है, इसमें जो मिडिल क्लास है वो भी है, और गुरबा भी हैं। तो लेकिन ये है कि लंडे की इशिया जो है इससे पहले गुरबा की पहुंच में होती थी, इसी तरह जो मिडिल क्लास थी उसकी भी पहुंच में थी, और उमरा तो खैर मुंह मांगे दामों वो ले चले जाते थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है वो निस्बतन पाकिस्तानी इशिया के बेहतर होती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इशिया को जो है वो कीमतों को जो है वो पर लग चुकी हैं, और वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि जो लंडा बाजार थे वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, और जो लोग होते हैं वो लंडा बाजार आते जरूर हैं लेकिन खरीदारी बहुत कम नजर आती है। खाका डोगरा में मौसम की तब्दीली के साथ ही शहरियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। मुदस्सिर अली भट्टी हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही खानका डोगरा के जो शहरी हैं उन्होंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख कर लिया है। खानका डोगरा में ऐसे एक मैं रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो मछली है, इसके अलावा जो मटन है इनका, और इसके अलावा जो चाय है वो बड़ी मशहूर है। यहाँ पर जो शहरी हैं यहाँ पर आते हैं और दोस्तों के साथ खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से मज़ीद इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जिस पर। जी, ये जो होटल है अभी सर्दियों का आगाज़ शुरू हुआ है, जैसे ही सर्दियों का आगाज़ शुरू हुआ है इस होटल पे माशाल्लाह जो फ़िश है और मटन की जो डिशेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इधर कस्टमर को डील कर रहे हैं, और बड़े इस होटल के अच्छे खाने हैं, और खाने के बाद जो चाय है उसका अपना ही मज़ा है। हमारे पास सबसे बेहतरीन डिश मटन की 4-5 वैरायटियाँ हैं। उसके बाद बीफ पुलाव स्पेशल है, हमने इधर मुतारफ़ करवाया बीफ पुलाव। उसके बाद हमने चाय अदरक वाली बहुत अच्छी लोगों ने पसंद की है, वो स्पेशल पीने आते हैं। उसके बाद फ़िश है, उसके बाद पकौड़ा है, बारबेक्यू का सामान है, तो लोगों ने बहुत पसंद किया है। खानगा में ये पहली बार हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की भी बात सुनी है, यहाँ का ओनर है इनके, यहाँ की किसी की बात सुनी है, लेकिन जो बहुत सारी इनकी जो डिशें हैं वो लोगों को बड़ी पसंद करते हैं, और मौसम की तब्दीली के साथ ही यहाँ पर जो शहरी हैं दोस्तों के साथ आकर यहाँ पर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, तुलंबा में भी सर्दियाँ आ रही हैं तो शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर लिया। शेख फरहान अली मजीद बताएंगे। सर्दियों की लहर आते ही जो है वो ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर भी जो है वो रश लगने लग जाता है। लोग चलगोज़ा, बादाम और पिस्ता खरीदने के लिए जो है वो ड्राई फ्रूट्स की दुकानों को रुख कर लेते हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं। हमारे पास बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, चलगोज़ा हो गया, मूंगफली वगैरह 12 चनार हो गई, गुज्जर खां मूंगफली हो गई, अंजीर माशाल्लाह बहुत अच्छी है हमारे पास। इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, मतलब
ड्राई फ्रूट में सब चीज़ें बिकती हैं और आला ट्रेन की चीज़ है हमारे पास, होलसेल का ही काम है, परचून का भी काम है हमारे पास, माशाल्लाह बहुत काम है। रेट्स कैसे हैं? रेट बिल्कुल मुनासिब रेट है हमारे मार्केट से, बिल्कुल होलसेल का रेट है हमारा, बिल्कुल मुनासिब रेट है हमारा। लोगों की पहुंच में आ रहे हैं या नहीं? लोगों की पहुंच में आ रहे हैं, कोई गाहक कहते हैं, कोई गाहक नहीं कहते, मतलब सही चल रहा है निज़ाम। जी बिल्कुल, सर्दियों की लहर जैसे ही आती है उसी तरह जो है वो शहरी जो है वो ड्राई फ्रूट्स की दुकानों को रुक कर लेते हैं। रेट्स भी जो है वो बताया जा रहा है मुनासिब है अभी तक। जी, जदीद दौर में आज भी देसी और रिवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ कैसे तैयार होता है, चौधरी मोहम्मद अवैस ने रिपोर्ट तैयार की है। रीनाला खुर्द में कमाद की फसल पकने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जोबन पर आ जाता है। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढलने के लिए कई मराहल से गुजरना होता है। गन्ने को काटने और छीलने के बाद इन्हें बेलने में डालकर रस निकाला जाता है, जिसे साफ करके तपती भट्टी में घंटों पकाया जाता है। गुड़ में रवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। भरपूर खुशबुओं, मिठास और लस्तों वाले स्पेशल गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पर भी भिजवाया जाता है। गन्ने का प्रोसीजर है, ये साल की फसल है, जब साल में पककर तैयार हो जाती है तो वो अक्टूबर नवंबर में हम बेलना लगाते हैं। बेलने पे हम काफ़ी मेहनत का काम है, बहुत मशक्क़त का है, तो मज़दूर 8-10 मज़दूर आके हम खुद भी साथ काम करते हैं। और गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे शुगर को कंट्रोल किया जाता है और खून की कमी को भी ये गुड़ पूरा करता है। अगर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए तो खाना उसी वक्त हजम हो जाता है। फसल पर साल भर भरपूर मेहनत की जाती है, तो गुड़ बनाना भी इंतहाई मेहनत तलब है। फिर भी पूरा सिला ना मिले तो धरती से जुड़े मेहनत कशों के दिल टूटने लगते हैं। गुड़ की तैयारी के बाद इसको मंडियों में भेजा जाता है, जहां इसकी तरसील मुल्क भर के अलावा अफगानिस्तान, मशरक वस्ती और वस्ती एशिया के बेशतर ममालिक में भी की जाती है। किसान अपना गुड़ तैयार करने के बाद रीनाला खुर्द और अख्तराबाद की मंडी तक लेके जाते हैं, जहां पर उन्हें उनका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। गुड़ जो है वो लोग अपने अजीज़ों कारब को तोहफे में भी बेचते हैं। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रीनाला खुर्द। शेखुपुरा थाना सिटी डिवीजन के इलाके मोहल्ला आर्यावाला से 25 रोज कबल अगवा होने वाला जवान साला लड़की समेत 2 कमसिन बच्चे ताहाल बाजियाब न हो सके। मगवियों के वरसा सरापा एहतजाज है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका पुलिस को 7 नवंबर तक बच्चों को बाजियाब करा के अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। हाई कोर्ट से रुजू किया। वालिदैन का यह कहना है तो अदालत आलिया ने फौरी नोटिस लेते हुए बच्चे को बाजियाब करवा दिया। मेरे बच्चे 9 अक्टूबर से लापता हैं। आज 18 दिन होने के बावजूद अभी तक मेरे तफ्तीशी SHO और DSP इनको तलाश नहीं कर पाया, और मैंने FIR 9 तारीख की दर्ज भी करा रखी है। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, IG पंजाब और DPO शेखपुरा से कि मेरे जल्द अज जल्द बच्चे बाजियाब करवाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे बाजियाब कराए जाएँ, क्योंकि वो घर से बाहर जब निकले थे उस वक़्त के लापता है 9 तारीख से। बराए मेहरबानी हमारे बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। गोजरा शहर और गिरदनवाह में डकैती की वारदातें थम न सकी। डाकू ने सिताना सिटी में घर में दाखिल होकर घर वालों को जरखमाल बना लिया। नकदी और मोबाइल फोन भी लूट लिए। पुलिस के मुताबिक डाकू ने मजामत पर फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सोहावा पुलिस की अहम कार्रवाई के दौरान डकैती और नकबजनी में मुलव्विस 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। आपको बताएं, डकैती और नकबजनी में मुलव्विस डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से बरामद होने वाली नकदी और जेवरात की मजमूई मालियत 1 करोड़ 81 लाख रुपए से जायद है, जबकि मुख्तलिफ अजला और इस्लामाबाद में मुतादिद वारदातों का वो इंकशाफ भी कर चुके हैं। आप बताएं, स्कूल में आग लग गई। रेस्क्यू ने स्कूल में आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। स्कूल के बच्चों को क्लासरूम से निकालकर महफूज बना लिया गया। जेहलम के खबर है ये। स्कूल इंतजामिया का कहना है आग शॉर्ट सर्किट के बाद स्कूल के किचन में लगी। 3 कमरों का सामान जलकर खाकसर हो गया। बिहाड़ी में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का हुकूमत पंजाब की गंदम पॉलिसियों वापडा की गैर कानूनी बिलिंग में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी क़यादत जो है मुजाहरे की मरकजी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार चौधरी ने की। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेकर किसान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है अजनास की कीमतें पूरी नहीं मिल रही। किसानों ने हर मुश्किल वक्त में अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी दी और आगे भी कुर्बानी देने से दरेख नहीं करेंगे। बिहाड़ी प्रेस क्लब तक रैली निकाली और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा भी किया।
खान बेला में पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर का तरिंडा मोहम्मद पनाह मोटरवे ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह को बंद कर दिया। कौमी शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी लाने लग गई। ट्रांसपोर्टर की जानिब से मोटरवे पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आपको बताएं, मुजाहिरीन का कहना है मोटरवे पुलिस और ओवरलोडिंग की आड़ में ड्राइवरों को नाजायज जुर्माने करते हैं और मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, ग्रेजुएट कॉलेज की ओल्ड तारीखी इमारत पर महकमे माल की जानिब से मुबैना कब्जे की कोशिश के खिलाफ मुअज़्ज़िज़ीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर की अहम शख्सियात ने गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की। फोटाबाज कॉलेज के दिफा का अज़्म भी किया। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर माजिद अली ने कॉलेज की इमारत की अहमियत और तलबा के लिए हॉस्टल बनाने के मंसूबे पर रोशनी डाली, जबकि बार एसोसिएशन के उहदेदारान ने यकीन दिलाया कि किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई को रोका जाएगा। कॉलेज की हिफाजत के लिए हर मुमकिन वसाइल भी बरोए कार लाए जाएंगे। कलूरकोट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत कामयाब होने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून साबिक़ एमएनए अब्दुल मजीद खनाखेल ने घर घर जाकर तहसील कलूरकोट के 5 खुशनसीबों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के मुताबिक अपनी छत अपना घर जो है, इस प्रोग्राम को जो भी खुश नसीब हैं उनकी कुरानंदाजी में नाम निकले हैं, उनको डोर स्टेप पर उनके घरों में असनाद और चेकों की तकसीम के लिए जनाब अब्दुल मजीद खनान खेल साहब के साथ उनको तकसीम की गई हैं असनाद। और ये गवर्नमेंट का वो इनिशिएटिव है जिसमें गरीब लोगों को बिला सूद कर्जा ये 15 लाख तक उनको मिलेगा और वो अपना घर बआसानी तामीर कर। आज पंजाब हुकूमत की तरफ से सीएम साहबा की डायरेक्शन पे हम अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत जो हमारे इलाका के अंदर जिन खुश नसीबों के नाम निकले, आज हम उनके घर घर जाके वहाँ पे उनको ये असनाद और चेक तकसीम कर रहे हैं और इंतहाई मेरिट पे शफाफ तरीके पे ये तकसीम हुई है और लोगों को उनके घर पे जाके हम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह के हमारी पंजाब हुकूमत का एक विज़न है कि पंजाब के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ऐसा घर नहीं बाकी बचेगा कि जिसकी अपनी छत अपना घर अपना मकान ना हो। फोकल पर्सन इस्ताथे पोलियो मुहिम उस्मा कारदार का भावलपुर का दौरा। पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग की ताकि इस्ताथे पोलियो मुहिम के 100% अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। साजिद सुहेब की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फोकल पर्सन बराए इस्तादात पोलियो उस्मा कारदार ने भावलपुर का दौरा किया। उन्होंने भावलपुर में मुख्तलिफ मकामात समेत खाना बदोश खानदानों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाली टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। आपको पता है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन हमारी चल रही है, 28 अक्टूबर से शुरू हुई हुई है और अब कैचअप डेज हैं इनके। तो उन्होंने अब खुद इसको स्पेयर हेड कर रही हैं, खुद लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि आप जाके मॉनिटर करें, देखें कि कोई हमारा जो बच्चा है वो मिस ना हो जाए। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम 2 नवंबर तक जारी रही। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के साथ साथ विटामिन ए की कैप्सूल भी पिलाए गए। कैंपेन मुकम्मल हो गई और हमारा 8,24,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% अपना टारगेट अचीव किया है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा प्राइमरी स्कैनिंग की डायरेक्शन पे हमने इंश्योर किया कि 5 साल से नीचे जितने बच्चे हैं उनको हम पहुंचे घर तक, उनको कतरे पिलाएं। पोलियो मुहिम के दौरान फोकल पर्सन उस्मा कारदार समेत महकमा हेल्थ की पूरी टीम पाकिस्तान से पोलियो जैसे मूजी मर्ज को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़म दिखाई दी। कैमरा टीम के साथ साजिद ज़ुहैब, ABN न्यूज़ भावलपुर। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस का कौमी शाहराह पर गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए रोड सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद। इसी हवाले से उज़ैर अखलाक चौधरी ने रिपोर्ट तैयार की है। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस ट्रैफिक कवानीन की आगाही देने के लिए मैदान में आ गई। कौमी शाहराह पर मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स के लिए रोड सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट और साइड मिरर समेत दीगर सेफ्टी स्पेयर पार्ट्स तकसीम किए। हम ब्रीफिंग स्टॉल लगाए हुए हैं जहां हम लोगों को हेलमेट, साइड व्यू, मिरर्स और बाकी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, गैजेट्स दे रहे हैं जो बाइक राइडर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसका एक ही मकसद है, सोल पर्पज़ है
کہ ہم نے بائک رائڈر کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے اور اپنی شاہراہوں کو پرامن بنانا ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے سے ہی حادثات پیش آتے ہیں۔ ہر شہری کو ٹریفک قوانین کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہی اپنی گاڑیوں کو سڑک پر لانا چاہیے۔ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہی ٹریفک حادثات کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ABN نیوز، رحیم یار خان۔ بیل پتھر پھل پاکستان کے علاقے پیر محل میں موجود قدرتی اجزاء سے بھرپور اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل کی خاصیت رکھتا ہے۔ بیل پتھر بیلگری کے نام سے مشہور ہے۔ اس پھل کے بارے میں ہمارے نمائندے قاسم بھٹی نے رپورٹ تیار کی ہے۔ محل کے نواحی گاؤں 343 میں بیل گری پھل کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ بیل گری ایک ایسا غیر معمولی پھل ہے جس کے استعمال سے کافی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اردو میں بیل پتھر بھی کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں بیل فروٹ اور ووڈ ایپل، پنجابی میں بل، سندھی میں کٹوری کہتے ہیں۔ بیل گری کی زیادہ کاشت بھارت میں کی جاتی ہے، لیکن بھارت کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور کہیں کہیں پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ بیل گری کا یہ درخت ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی علاقہ 343 گاہ بے جڑاہاں کے کنوں کے باغات میں منفرد نظر آتا ہے۔ ضلع بھر میں بیل گری کی 1 یا 2 درخت پائے جاتے ہیں۔ بیل گری کا جو درخت ہے ہماری زمین میں ہے، یہ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 یا 2 جگہ پہ درخت ایسے موجود ہیں۔ یہ اینٹی جو فنگل ہے اس کی خاصیت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ اس کو اگر حکومت وقت اس کی جو نرسری کسانوں کو فراہم کرے تو اس کی پروڈکشن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیل گری کا پھل موسم گرما میں پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا شیک انڈیا اور بنگلہ دیش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بیل گری سے حاصل اینٹی مائکرو بیل جو اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل کی خاصیت رکھتا ہے۔ حکومت وقت اگر کاشتکاروں کو اس کے بارے میں تربیت دے تو اس کی کاشت میں سے نہ صرف کسان کو فائدہ ہوگا بلکہ ملک کو زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ محمد قاسم بھٹی، ABN نیوز، پیر محل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کھیلتا پنجاب پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ قائد اعظم اسٹیڈیم بورے والا میں کبڈی ٹورنامنٹ کا افتتاح وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سید ساجد مہدی سلیم اور دیگر پارلیمنٹیرین نے افتتاح کیا۔ کھیلتا پنجاب کے حوالے سے ہماری CM محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بہت سخت ایکشن لیا ہے کہ گراس روٹ لیول سے ہی ہمارے سپورٹس کے جو ایونٹ ہوتے تھے یہاں سے بچے جو ہیں پروڈیوس ہوتے تھے اور پاکستان کا نام روشن کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے بالکل یہ بریک ہوا تھا۔ چنیوٹ میں صوفی بزرگ میاں محمد شفیع قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 42ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ اندرونی اور بیرونی شہریوں سے سینکڑوں مریدین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ صوفی بزرگ میاں محمد شفیع قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 1 روزہ عرس مبارک کی تقریبات زیر صدارت سجادہ نشین پیر سلطان محمود قادری اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ جلال پور پیروارہ کے رہائشی 35 سالہ 2 جڑواں بہنیں جن کا قد 3 فٹ ہے، ان کا ایک 40 سالہ بھائی جس کا قد 2.5 فٹ ہے۔ محمد ذیشان عارف کی رپورٹ دیکھیے۔ پیروالہ کے نوائی علاقہ بستی بھنڈا ویس میں ایک ہی گھر میں 3 بہن بھائی معذور ہیں۔ 35 سالہ 2 جڑواں بہنیں جن کے قد 3 فٹ جبکہ ان کا ایک 40 سالہ بھائی جس کا قد 2.5 فٹ ہے، جو پیدائشی طور پر معذور ہیں۔ غربت نے ان کے گھر اس طرح ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ ان کا کام کرنا تو درکنار 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کھا پاتے ہیں۔ غریب لوگ کیسے پیسے کہاں نہیں لینے کئی کنی سارا پیو مار کے بستی اساں بھنڈا وینس رہندے سی، اساں غریب لوگ کیسے ساری امداد کانی ایک ویلے دی کانی ساری بی بی مریم نواز کی امداد کرے ساری تا جیری تھی سگے سکو لے نکے بالن میرے محذوب شدے کرن دے کانی۔ اساں بھنڈے وین دریا چھتے بالن یتیمن معصوم ان دی والدہ تو عمر 60 سال تو 65 سال تائیں، نکے دی عمر 40 سال، انہیں نکے دی عمر 35 36 سال، انہیں دا کئی کانی خاندان، انہیں دا جا پرویش ماں کرے جا مائیں چاچا میں انہیں دے میں کرنا کیا سنی اللہ دی ذات کو بغیر انہیں دا بیا کئی کانی آج تینے 40 سال تک انہیں کئی حکومت جتی آئی ہے، عمران خان دی، محمد نواز شریف دی، شباز کہیں نہیں امداد کی دی، بی بی مریم نواز بے بھی جائے امدادہ کرنی پیے، انہیں بالیں کہیں کا نہیں سوچی۔ ان کا ستیلا باپ اور 60 سالہ بوڑھی ماں ان کی کفالت کرتے ہیں جو بڑی مشکل سے ان کا پیٹ پال رہے ہیں اور حکومت وقت سے امداد کی بھرپور اپیل اور مخیر حضرات کے تعاون کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین محمد فاروق کے ساتھ محمد ذیشان عارف، ABN نیوز، جلال پور پیروالا۔
खैबर पख्तूनख्वा को रुख करें और आपको खबर देंगे मानसेरा में मानसेरा यूनिवर्सिटी में रोड का इशू जो कि हल नहीं हो रहा। आपको बताएं मानसेरा के अंदर यूनिवर्सिटी रोड हजारा यूनिवर्सिटी शारा रेशम की हालत इंतहाई ख़राब। रोड से मुल्का निकासियाब न होने से मुश्किलात का सामना है। मुतादिद बस्तियाँ बाद जबकि मुतादिद इलाकों में लाने वाली वाहिद शरा, इसके बावजूद हुकूमती अदम तवज्जही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगे। यूसीको के रिहायशियों का चित्राली शंदूर रोड पर काम की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। फतहुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। चित्राल यूसीको के आवाम का चित्राल शंदूर रोड पर काम की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लोअर चित्राल मोरिलर्स के मकाम पर चित्राल बुनी रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। चित्राल और अपर चित्राल के जो दरमियान जो वाहिद रास्ता है शाहरा, ये रास्ता पिछले 5-6 साल से जो है मुकम्मल तौर पर जो है खंडर बना हुआ है। यहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग था उसको उखाड़ के जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह बनाया है। अभी मेरा गला जो बैठ गया है, मैं कोई गाना गा के मेरा गला नहीं बैठा है, अपने हुकूक के लिए एहतजाज करके मेरा गला बैठ गया है। आवाम का आला हुकाम से मुतालबा है कि बुनी शंदूर रोड पर काम शुरू किया जाए। बासूरत दीगर मुतालबे की मंजूरी तक रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद रखेंगे। फतहुल्लाह, ABN न्यूज़, लोअर चित्राल। डीपीओ हरिपुर फरहान खान की ABN न्यूज़ पर खानपुर रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल वैन में ओवरलोडिंग की खबर पर एक्शन। डीपीओ ने गुज़िश्ता रोज़ ABN न्यूज़ पर खानपुर रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल वैन में ओवरलोडिंग के हवाले से चलने वाली खबर पर नोटिस ले लिया, जबकि मुतादिद ओवरलोड गाड़ियों के ड्राइवरों को जो है वो वार्निंग भी जारी करते। सिंध के इलाके लाड़काना में बैतुल माल कॉलोनी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मर्द और खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस चाबुक पहुंच गई है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शायर मशरिक़ कलाम इकबाल की यौम विलादत की मुनासबत से साउथ बलूचिस्तान में तकरीब का सिलसिला जारी है। आपको बताएं तकरीरी मुकाबले भी हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और नज़रिए के मुताले खिताब भी किया गया। तलबा तलबात ने जोश व खरोश से इस तकरीब में शिरकत की है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 59 करोड़ रुपए की लागत से सलहा पुल और सड़क की पुख्तगी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। 180 मीटर लंबे पुल को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का कहना था 18 माह की हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के निज़ाम हुकूमत को कानून और आइन के ताबे कर दिया। हेल्थ पैकेज के तहत ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल भिम्बर को मुस्तकिल की ज़रूरियात के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। अगले 10 दिनों में आज़ाद कश्मीर के तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर्स और सेहत की सहूलतें मौसर होंगी। सलर पुल की तकमील से मीरपुर और भिम्बर के दरमियान 25 मिनट की मुसाफत कम होगी और लोगों को आसान सफरी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। कोटली आज़ाद कश्मीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आवारा जानवरों के लिए जे रोड पर फाटक बना दिया। परवेज जलाली चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर का कहना है कि आवारा जानवर शहर में न सिर्फ ट्रैफिक में खलल डालते हैं बल्कि शहर में गंदगी का सबब भी बन रहे हैं। फाटक में 26 जानवर मौजूद हैं जिनको चारा भी दिया जा रहा है। तहसील हेडक्वार्टर समानी से मुल्का गड़ा नजा खपोल खस्ता हाली का शिकार जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इससे पहले हमने इस पुल की तहरीक इस पर बहुत काम किया। हुकूमत को और अदारों को बहुत दफ़ा जो है यहाँ पे उनको तवज्जो दिलाई। यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं स्कूल के, वो इस पुल से तकरीबन 6 से 7 बच्चे जो हैं वो अपनी टांग जो है वो फ्रैक्चर करा बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करूँगा कि ये पुल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब भी नदी में पानी आ जाता है तो यहाँ पे 2 कॉलेजेस भी हैं, गर्ल्स कॉलेजेस, एक रीड फाउंडेशन कॉलेज है और एक गर्ल्स कॉलेज है हमारा। उसकी बच्चियां भी जो हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकती। यही वाहिद जरिया है हमारा कम अज़ कम 20,000 से ज़ायद आबादी को मिलाने के लिए। यही पुल जो है वो हमारे पास है। रेरा अंजुमन ताजरान की इंतखाब पासबान ताज दोस्त पैनल ने 332 वोटों के साथ मैदान मार लिया। ताजिर इत्तेहाद पैनल 253 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर, जबकि जानिसार पैनल 15 वोट हासिल कर सका। कुल 620 वोट थे। मुराद अनवर की रिपोर्ट देखिए।
ضلع باغ کے دوسرے بڑے تجارتی مرکز ریڑا میں انتخابی عمل مکمل. پاسبان تاجر دوست پینل 332 ووٹ لے کر دوسری مرتبہ فاتح قرار پایا، جبکہ تاجر احتیاط پینل 253 ووٹ حاصل کر سکا. کل ووٹرز کی تعداد 620 تھی، جس میں سے 611 ووٹ پول ہوئے. الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کو شفاف اور پرامن بنانے کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے. اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات رہی. فاتح صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مزاحمتی پینل ہے اور ہمارا مقابلہ بالادست قوتوں سے تھا. چوک چوراہوں میں عوامی حقوق کی بات کرتا رہوں گا. وہ ایک مزاحمتی پینل تھا جس کے خلاف یہاں پہ تمام ایک اسٹیڈیم بنا تھا. یہاں کی کمیاں، یہاں کے اور جتنے بھی بالادست طبقے ہیں وہ ہمارے خلاف تھے. الیکشن نتائج کے اعلان کے بعد پاسبان کے حامیوں نے میلاد چکریڑا میں بھرپور جشن منایا، جس میں آتش بازی کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا. مراد انور، ABN نیوز، ریڑا، آزاد کشمیر. باغ میں مظلوم خاندان باثر افراد کے مظالم سے تنگ ہو کر انصاف کی دہائیاں دینے لگا. اپر کونا موری کے رہائشی مظلوم خاندان کے محمد قدید خان نے اپنے بیوی بچوں سمیت میڈیا سے گفتگو کی ہے. میں ہفتے واسطے ایک ڈرم مانگا لینا، وہ بھی نہیں پڑھ لینے. میرے مزدوری کر کے پہ اپنا بنڈل آ لا، میرا بنڈل اٹھا گیا. لہذا میں کو راہداری دیتے جائے، میرے کو انصاف کیتے جائے. شہر میرے کو ایک ہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے. میں دیکھنا آج 31 تاریخ تو لے کے ہویا، اس وقت تک میری پشت پناہی نہیں ہوئی. میں SP صاحب کو بھی درخواست دیتی، تھانے میں بھی دیتی ہوں. میں رات میں گیا تھانے میں، میرے بیان ہوئے، میں واپس چلا گیا. میری FIR نہیں ہو رہی.